Hello students, today we are going to study the topic of the development of lateral surfaces of different solids. Already we have discussed the projection of solid and section of solid. That is, one object is just suppose that cylinder, second one is prism, third one is cone and pyramid. So in that particular topic, development of lateral surfaces, just we will open the object, and object will depend on the cylinder, prism, cone, and pyramid. Suppose that cylinder is there. So when we will open the cylinder, suppose that is the cylinder. And when that cylinder will open and cut from that particular line, and when we will open, so on that time, the shape of the open object is like that, the rectangle. So in that particular topic, just we will open the object. Suppose that is the cylinder. So when the circumference of the cylinder will be when we will cut from that particular one line and just we will open. So in that case, the size of that particular object will be the rectangle. Similarly, if you're talking about the prism may be triangular prism, square prism, pentagonal prism, hexagonal prism, octagonal prism. So what is the procedure for the development? So in that case, suppose that we will cut one line of that particular prism, जो prism है, suppose that is the prism, that is the pentagonal prism, and when we will cut from that top line to bottom line like that, that is the faces. So when we will cut and when we will open, so on that time, again we will see the object will be rectangle. But what will be the difference between that rectangle and that rectangle? In the case of the cylinder, when we will open the subject object, so on that time, the continuous surface will be there, which is already shown in the cylinder. But in the case of the hexagonal or maybe pentagonal prism, or maybe in the case of the prism, outer edge will be dark like that rectangle, sorry, cylinder. Similarly, in the case of the prism, inner edge also will be visible because that is not the continuous surface. Suppose that when we will open that cylinder, so on that time continuous surface will be there. But suppose that is the prism. For example, that is the triangular prism. So that is the triangular prism. When we will cut and when open, so on that time, that is already visible, that is and that is will be visible. So that's why that edges of the, we can say that faces of the prism will be visible. So what will be the size of the rectangle? It will depend on the pi d. Pi d, it means that the radius of the circumference of the circle or diameter of the circle. Similarly, in the case of the prism, the one side is like that 30 mm. So all the edge of that pentagon, suppose that is the object of pentagon. So on that case, all the edge of that pentagon is into कर दीजिए इसमें. So it will be the length of that particular prism. Suppose that is the size of 30 centimeter, 30 mm, and that is the case of the pentagon. So 5 into 30 mm. So जो भी आएगा यहाँ पे, it will be the particular length of that prism. So maybe it will be the triangular prism, pentagonal, hexagonal, octagonal. The procedure of the development will be same. And one thing is that what is lateral surface? Suppose that is the prism, that is the pentagonal prism.
It will depend on the shape and size of the object, and the shape is like that pentagon, and that is the prism, because the two base is there and just two apex and joined by the two base and joined by the rectangle, so that is the prism. So in that case, in the case of the prism, maybe it will be the triangular, pentagonal, hexagonal, or octagon. Just we are discussing about the lateral surface, so that portion is called the lateral surface. In that particular case, just we exclude the top and bottom base of the particular object, and object में भी प्रिज्म का कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, बॉटम बेस को टॉप बेस को। तो रिमेनिंग पोर्शन जो इसको इस टाइप की फेस को बोलते हैं हम लैटरल सरफेसेस। सिमिलर केस में अगर हम बात करते हैं सिलेंडर के केस में, तो इन द सेम केस इसको जो हम बेस बॉटम एंड टॉप बेस को हटा देते तो जो खुला हुआ ओपन जो दिख रहा है तो दैट इज द लैटरल सरफेस। सो इन दैट केस दैट इज द लैटरल सरफेस and that is also the lateral surface. Both are the lateral surfaces. Now अगर हम बात करते हैं कॉन की एंड पिरामिड की, कॉन एंड पिरामिड की बात करें तो कॉन में क्या हो रहा है, सपोज दैट इज द कॉन, ये मैंने कॉन बना दिया है, कॉन बन के हमारे तैयार हो गई है, ये कौन है हमारी, इसको अगर मैं कट करता हूं फ्रॉम वन एज से, अपन इसको या इसको एक कहीं भी लाइन से कट करते हैं, और व्हेन वी विल ओपन, सो ऑन दैट टाइम दैट इज द शेप ऑफ द कॉन। सो सपोज दैट इज द कॉन, दैट इज द बेस ऑफ द कॉन एंड दैट इज अपेक्स, व्हेन वी विल ओपन लाइक दैट, सो the shape of the development of the particular object will be like that. In that particular case, R is the base circle radius, whatever the radius of the question is, the radius of the object is given. L slant height, that is the slant height, and theta. With the help of that theta, we can find out the angle बिटवीन द टू स्लैंट हाइट, जो जब उसको हम डेवलप करेंगे, ओपन करेंगे तो कितना साइज होगा उसका, ऊपर ओपन करने का तो कितना दिखाई देगा, तो इट इज द थीटा। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, एल आपकी स्लैंट हाइट है और 360 से इंटू कर देंगे तो दैट एंगल विल बी फाइंड आउट। और दूसरा भी क्या है कि अगर हमको इसको सपोज दैट इस तरीके से नहीं निकालना है तो अपन क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास से क्या करेंगे, इस तरीके से रेडियस जो दिया हुआ है तो यहाँ पे रख के, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको घुमा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से रख के इधर से घुमा देंगे। अब ये, अब इसके जैसे डिवीजन जितने मैंने करे, इसके डिवीजन यहाँ से यहाँ तक डिवीजन करेंगे, जैसे यहाँ के डिवीजन इस 4 किए, 1 2 3 4, और इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से जोड़ देंगे तो ये आपका जो बन जाएगा, ये भी आपका डेवलपमेंट ही है, जो खुलने के बाद जो इस तरीके से दिखेगा तो दैट इज आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ द कोन। And just we are talking about the pyramid and the same way of the lateral surfaces, so just we will exclude the base of the cone, so on that case the remaining portion of the cone will be the lateral surfaces of the particular object. Similarly, we are talking about the pyramid, suppose it may be square pyramid, triangular pyramid, pentagonal pyramid, hexagonal pyramid, octagonal pyramid, and whatever. सो इधर पिरामिड की हम बात करते हैं तो पिरामिड में क्या है, ये तो अपन ने बना दिया। अब इसमें हम पिरामिड मान लेते, पिरामिड तो ऐसा ही बन सकता है, इस तरीके से भी ये ऑब्जेक्ट बना लिए, इस तरीके से हमने बना लिए और इसके इस तरीके से ज्वाइन कर लिए, सबको यहाँ से जोड़ दिए, यहाँ से जोड़ दिए, यहाँ से जोड़ दिए, ये पिरामिड बन गई आपकी। तो ये आपका वही सेम केस है, पिरामिड का केस है। तो इसमें क्या है कि जब हम इसको डेवलप करेंगे तो हमने क्या किया, पिरामिड लिया, उसको खोला और इसको खोल दिया इस तरीके से, जब खोलने के बाद जो दिखाई देगा हमारे लिए तो वो इस तरीके से खुलेगा। तो इसमें भी वही एल स्लैंट एज है, एस एज ऑफ द बेस, तो क्या है भैया, इसमें भी वही फार्मूला, आप इसी का फार्मूला यूज करेंगे और इससे अपन का निकल जाएगा। तो निकल जाएगा क्या, एल आपकी स्लैंट हाइट है, एज है आपकी, और एस आपका एज ऑफ द बेस है, तो एज यहाँ रखोगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। अब इसको कितना खोलना है, तो इसमें एंगल अपन ने यहाँ दिखा दिया और यहाँ पे तो एक एंगल से निकाल सकते। दूसरा प्रोसेस क्या बताया मैंने आपके लिए कि यहाँ पे आप कंपास लीजिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, आप इसको बढ़ा दीजिए, फिर इसके एंड पॉइंट को यहाँ से जोड़ दीजिए। एंड पॉइंट को कैसे, मतलब इसकी साइड कितनी है, 4 है, तो 1 2 3 4, 4 को अपन ने इस तरीके से जोड़ देंगे, इसको इससे मैच करा देंगे, इसको इससे मैच करा देंगे, इसको इससे मैच करा देंगे, तो ये जो आपका हो गया। तो आप बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोन एंड पिरामिड,
जब दोनों का डेवलपमेंट तो सेम है, देयर इज नो चेंज इन द डेवलपमेंट, तो इसमें क्या है कि कंटिन्यूस सरफेस रहेगी, बट यहाँ पे एजेस हैं। देखिए आपको यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, तो एज को एज से जोड़ोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको जब देखोगे तो एज से एज दिखेगी, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, तो ये सब जोड़ दोगे इस तरीके से, तो ये आपका हो गया एज हो गया, ये आपका इस तरीके से हो गया। अब आपको इस तरीके से दिखा देंगे तो ये आपका हो जाएगा पिरामिड का डेवलपमेंट हो गया। सिमिलरली केस की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेट्राहेड्रॉन। सो इन द केस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन आल्सो, सपोज दैट इज द टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एक बेस होगा आपका, फिर उसके एक चार ये आपकी फेसेस होंगी, तो एक फेस को हमने क्या कर दिया, बेस जो नीचे रख दिया, फेसेस को अपन ने ऊपर लिया, तो इसको अपन को ओपन कर दिया, इधर ओपन कर दिया, इधर ओपन कर दिया, इधर ओपन कर दिया, तीनों को जो आपको बताया था। जैसे सपोज दैट इज द टेट्राहेड्रॉन, ये टेट्राहेड्रॉन है, इसका ये फेस को रख देंगे और इसको यहाँ कटिंग करके एक इधर खोल देंगे, एक इधर खोल देंगे, एक इधर खोल देंगे, तो खोलने के बाद में जो आपका दिख रहा है, आपका इस टाइप का जो शेप दिखाई दे रहा है, दैट दिस शेप एंड दैट शेप, सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यूब, तो क्यूब में भी क्या है, क्यूब में आप जानते हैं कि एक 6 फेसेस ऑफ द क्यूब आर देयर। सो इन केस में हम यहाँ कट लगाएंगे तो इसको जब ओपन करेंगे 4, तो इसमें 4 खुल जाएंगी, 1 2 3 4, सो दैट इज द लेटरल सरफेस ऑफ द क्यूब जो खोला है। बट अगर उसमें बोला कि भाई इसको भी खोल के दिखाइए कि ऊपर टॉप पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन, तो जो इसमें भी हम ये ऊपर इधर साइड खोल दिया, ऊपर की तरफ ढक्कन की तरफ खुल गया, तो ये खुल गया और ये खुल गया, तो दैट इज द डेवलपमेंट, ये कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द क्या है, क्यूब है। ये भी क्या है, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द टेट्राहेड्रॉन है। और इन केस में बात करें हम सिलेंडर के केस में, इनमें तो क्या बताया मैंने आपको कि लेटरल सरफेसेस का हम करते हैं, तो ये इसी ने करना है, तो इसमें भी लेटरल सरफेस ही कर सकते हैं, लेकिन अपन को क्या है कि ये दिखा दिया कि भैया इसमें लेटरल सरफेसेस का भी है और इसमें कंप्लीट भी करना है, तो कैसे करना है, तो अपन ने इसको इस तरीके से देख लिया। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि भाई हम एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमारे ज्यादातर इसी प्रकार के प्रिज्म होते हैं, पिरामिड होते हैं, सिलेंडर होते हैं, कौन होते हैं, तो हम उसको किस तरीके से डेवलप करते हैं, किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, तो यही हम इसमें इस टॉपिक में बताया गया है कि हम हाउ टू डेवलप द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सरफेसेस। ओके, थैंक यू।